Hello, everybody. Today we will study divorce under this Act 9. What is divorce? Divorce is basically a legal process for termination of a marriage. Okay? You can also say it is a cessation of matrimonial bond. Okay? Was the concept of divorce there in Hindu? No. Before 1955, there was no concept among Hindu or old Hindu law, there was no concept of divorce. Okay, but after the introduction of Hindu Marriage Act 1955, the concept of divorce was given in Hindu Marriage Act 1955. Okay, so basically divorce के कितने grounds है? So there are various grounds available to both husband and wife for divorce, and there are some specific grounds which are available only to wife for divorce. Okay, there are 4 extra ground which are available only to wife for divorce. Okay, which section of Hindu Marriage Act deals with divorce? So section 13, 13A, 13B, 14 and 15 deals with the provision of divorce under Hindu Marriage Act. Okay, let's see what are the grounds of divorce under Hindu marriage. So basically under section 13 subsection 1, there are 9 grounds available to both husband and wife for divorce under Hindu Marriage Act. Under section 13, subsection 1A, there are 2 extra grounds available to both husband and wife. And under subsection 2, under section 13, subsection 2 of Hindu Marriage Act, there are 4 extra grounds which are available only to the wife under only to the wife for divorce. Okay, so let's go through the grounds of divorce. What are the grounds of divorce? Basically, section 13, subsection 1 में there are total 9 grounds. Okay, 9 grounds, 7 plus 2, 9. Okay, 9 grounds. Okay, क्या क्या 9 grounds है? तो adultery, cruelty, desertion, conversion, unsound mind, leprosy, venereal disease, renunciation, and missing for 7 years. Okay, these are the ground available for both husband and wife. Okay, under section 13, subsection 1A, what are the grounds? There are 2 extra grounds available to both husband and wife. दोनों को available. Yeah, if there is no resumption of cohabitation for 1 year or more after a decree of judicial separation. अगर जुडिशियल सेपरेशन का डिक्री पास हो गया है और जुडिशियल सेपरेशन के डिक्री के पास होने के बाद भी हस्बैंड एंड वाइफ के बीच देयर इज नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन, वो लोग साथ नहीं रह रहे हैं, तो ये बन जाता है, ये क्या बन जाएगा? ये ग्राउंड फॉर डाइवोर्स बन जाएगा। ठीक है, 1 साल या 1 साल से ज्यादा जुडिशियल सेपरेशन के डिक्री के पास होने के 1 साल या 1 साल से ज्यादा हस्बैंड एंड वाइफ साथ नहीं रह रहे, तो इट विल बिकम द ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। और क्या है? नो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट फॉर 1 ईयर एंड और अपवर्ड आफ्टर पासिंग अ डिक्री ऑफ राइट टू कंजुगल। इवन इफ द राइट टू रेस्टिट्यूशन ऑफ राइट टू कंजुगल राइट का डिक्री पास कर दिया कोर्ट, ठीक है, लेकिन फिर भी 1 साल या 1 साल से ज्यादा रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का डिक्री को कंप्लाइंस नहीं किया गया, तो क्या होगा? वो भी ग्राउंड बन जाएगा डाइवोर्स का। ठीक है, अगर जुडिशियल सेपरेशन का डिक्री पास हुआ और उसके पास होने के बाद भी देयर इज नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, तो इट विल बिकम अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। और रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का डिक्री भी पास हुआ, उसके बाद भी हस्बैंड एंड वाइफ मतलब वो विलफुली डिसोबे किया गया है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट के डिक्री को, तो फिर वो ग्राउंड बन जाएगा किसका? डाइवोर्स का। ओके, अंडर सेक्शन 13(1)(a) of Hindu marriage. And what are the extra 4 ground available to wife? तो फर्स्ट, बाइगैमी। अगर हस्बैंड क्या करता है, वाइफ के रहते हुए बाइगैमी करता है, मतलब कि वाइफ
है, लेकिन वो सेकंड मैरिज करता है। फर्स्ट वाइफ के लिविंग होते हुए अगर सेकंड वाइफ कर रहा है तो बाइगेमी का ग्राउंड बनता है, और फिर वाइफ के पास ग्राउंड है कि वो डाइवोर्स के लिए जा सकती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, हस्बैंड इज गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी या बेस्टियलिटी। अगर हस्बैंड रेप, सोडोमी या बेस्टियलिटी का दोषी है तो भी वाइफ के पास ग्राउंड है कि वो जाके डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती है। थर्ड, द डिग्री ऑफ मेंटेनेंस प्लस नो कोहैबिटेशन फॉर 1 ईयर और अपवर्ड। अगर अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, नाउ 144 ऑफ बीएनएसएस, अगर डिग्री ऑफ मेंटेनेंस हस्बैंड के अगेंस्ट पास हो जाता है और 1 साल या 1 साल से ज़्यादातर कोई कोहैबिटेशन नहीं हुआ हस्बैंड एंड वाइफ के बीच, तो फिर ये भी काउंट बन जाएगा किस चीज़ का, डाइवोर्स का। द फोर्थ पॉइंट इज ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी मतलब क्या मतलब है इसका, कि इफ व्हेन मैरिज टुक प्लेस, जब मैरिज हुआ तब वाइफ क्या थी, वाइफ वाज बिलो द एज ऑफ 15 ईयर्स। ठीक है। तो जैसे ही वो 15 ईयर एज के को अटेंड करेगी, जैसे वो 15 साल की होगी, तो बिटवीन 15 टू 18 ईयर द वाइफ हैज द राइट कि वो जाके मैरिज को रेप्यूडिएट कर सकती है। रेप्यूडिएट क्या मतलब, खंडन कर सकती। ओके। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी मतलब इफ द गर्ल was below 15 year at the time of marriage, then once she attained the age of 15 year, then she has the right to repudiate her marriage between the age of 15 to 18 years, but not after 18 years. Okay. Even if the cohabitation, consummation of marriage has taken place. Okay. Chalo, we will discuss what are the amendments, what were the amendment in divorce. Okay. क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है डाइवोर्स में, प्रोविजन में, मैरिज। तो अमेंडमेंट्स इन डाइवोर्स बाय मैरिज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1976। बेसिकली मैरिज एक्ट में 2 बार अमेंडमेंट हुआ, एक 1976 में और एक 2019 में। लेट्स सी 1976 में कौन कौन सा अमेंडमेंट हुआ है और 2019 में कौन कौन। तो बेसिकली क्या हुआ है, 1976 में सिंगल एक्ट ऑफ एडल्ट्री को भी माना जाएगा, अगर इवन इफ द सिंगल एक्ट ऑफ एडल्ट्री इज कॉन्स्टिट्यूटेड देन इट इज ऑल्सो अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। अर्लियर क्या था, अर्लियर था कि इफ द पर्सन वाज लिविंग इन एडल्ट्री तभी वो डाइवोर्स का ग्राउंड बनेगा, लेकिन सिंगल एक्ट ऑफ एडल्ट्री वाज नॉट द ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। लेकिन एक्सप्रेशन लिविंग इन एडल्ट्री को क्या कर दिया गया, डिस्पेंस कर दिया। ठीक है, उसको हटा दिया। सेकंड क्या पॉइंट है, सेकंड है कि क्रुएलिटी एंड डिजर्शन। अर्लियर क्या था, बिफोर 1976 क्रुएलिटी और डिजर्शन सिर्फ जुडिशियल सेपरेशन का ग्राउंड था, लेकिन वो डाइवोर्स का ग्राउंड नहीं था। आफ्टर 1976 के अमेंडमेंट के बाद से क्रुएलिटी एंड डिजर्शन को क्या किया गया, ऐड किया गया और डाइवोर्स का ग्राउंड बनाया गया। थर्ड पॉइंट क्या है, मिनिमम। अच्छा, ये लेप्रोसी में क्या हुआ, 2 बार अमेंडमेंट हुआ। कब कब, एक है कि पहले क्या था, 1976 से पहले क्या था, एक मिनिमम पीरियड प्रेस्क्राइब किया हुआ था जिसमें बताया गया था कि इस पीरियड तक अगर लेप्रोसी है तो आप डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 1976 में वो जो मिनिमम पीरियड प्रेस्क्राइब किया गया था उस चीज़ को क्या कर दिया गया, उस चीज़ को ओमिट कर दिया गया। ठीक है, उस चीज़ को ओमिट कर दिया गया कि नाउ अब कोई मिनिमम पीरियड प्रेस्क्राइब नहीं है फॉर लेप्रोसी एंड वेनेरियल डिजीज के लिए। ओके। और क्या हुआ आगे, अल्टरनेटिव रिलीफ फॉर इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग भी ऐड किया गया। कब ऐड किया गया, 1976 में। प्लस डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट भी 1976 में ही इंट्रोड्यूस। ओके, चलो, अमेंडमेंट्स इन 1976 इज क्लियर। नाउ लेट्स सी जो सेकेंड अमेंडमेंट हुआ है मैरिज एक्ट, तो क्या हुआ, 2019 में हुआ। 2019 में क्या हुआ, 1976 में लेप्रोसी और वेनेरल
डिजीज़ का जो प्रिस्क्राइब पीरियड था, उस चीज़ को क्या किया गया, उस चीज़ को हटाया गया। लेकिन 2019 में क्या बोला गया, 2019 में बोला गया कि वायरुलेंट या इनक्यूरेबल फॉर्म ऑफ जो लेप्रोसी है ना, उस चीज़ को परमानेंटली ओमिट कर दिया। ओके? लेट्स सी इन डिटेल। डिटेल में देखते हैं अंडर सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 जितने भी ग्राउंड्स हैं उसको इन डिटेल देखते हैं क्या-क्या है। तो फर्स्ट ग्राउंड क्या है? एडल्ट्री है फर्स्ट ग्राउंड। उसमें क्या बोला गया था 1976 में क्या बोला गया कि सिंगल एक्ट ऑफ एडल्ट्री भी सफिशिएंट है। एक्सप्रेशन लिविंग इन एडल्ट्री को क्या किया गया? डिस्पेंस कर दिया। ओके? सेकंड क्या है? एडल्ट्री को क्या किया गया? एडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है। कौन से केस में डिक्लेयर किया गया? तो जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में एडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। लेकिन कोर्ट एक्सप्रेसली ये भी बोला कि लेकिन कि जो एडल्ट्री है वो अभी भी जो डाइवोर्स का ग्राउंड है वो मैट्रिमोनियल रिलीफ का ग्राउंड हमेशा रहे, मतलब वो मैट्रिमोनियल रिलीफ का ग्राउंड है अभी। क्या मतलब एडल्ट्री किसकी चीज़ का ग्राउंड है? फर्स्ट तो जुडिशियल सेपरेशन का भी ग्राउंड है वो, सेकंड वो डाइवोर्स का भी ग्राउंड बनता है एडल्ट्री। ओके? सीएम श्रीवास्तव वर्सेस अश्विन प्रसाद के केस में क्या बोला गया कि एडल्ट्री जो है वो इनडायरेक्ट एविडेंस या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से भी प्रूव किया जाए। अब ऐसा होता है ना कि कोई पर्सन एडल्ट्री कर रहा है अपॉन हिज स्पाउस, तो जरूरी नहीं है कि जो दूसरा पार्टनर है उसको डायरेक्ट एविडेंस मिले। इसीलिए इनडायरेक्ट एविडेंस या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से भी एडल्ट्री को प्रूव किया जाता है। ये किस कहा गया? तो ये सीएम श्रीवास्तव वर्सेस अश्विन प्रसाद के केस में कहा गया। ओके? देयर इज नो नीड टू prove adultery by direct evidence. Indirect evidence and circumstantial evidence can be also given for the proof of adultery. Now let's see the second ground for divorce, which is cruelty. क्रुएलिटी क्या है? क्रुएलिटी होता है क्रूरता। ठीक है? हम किसी के साथ क्रूरता करते हैं तो उसको क्रुएलिटी कहते हैं। क्या क्रुएलिटी डिफाइन है हिंदू मैरिज एक्ट में? नहीं, क्रुएलिटी हिंदू मैरिज एक्ट में डिफाइन नहीं है। ठीक है? लेकिन क्रुएलिटी क्या हो सकता है? फिजिकल या मेंटल बोथ हो सकता है। जरूरी नहीं है कि कोई फिजिकल क्रुएलिटी हमेशा फिजिकल ही होगा, मेंटल भी हो सकता है। जब कोई किसी को मेंटली टॉर्चर करता है, हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को मेंटली टॉर्चर करता है, तो उसको भी क्रुएलिटी कहेंगे। ठीक है? लेट्स सी क्या-क्या हो आएगा क्रुएलिटी। तो फर्स्टली रुसेल वर्सेस रुसेल के केस में क्रुएलिटी को पहली बार डिफाइन किया गया। क्या कहा गया? क्या है क्रुएलिटी? तो कोर्ट बोला कि कंडक्ट ऑफ सच कैरेक्टर एज टू हैव काउज डेंजर, जो कि डेंजर टू लाइफ होगा, डेंजर टू लिम्ब या हेल्थ होगा, या बॉडली या मेंटली होगा, या गिव राइज टू रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ सच कंडक्ट। जरूरी नहीं है कि वो डेंजर हो जाए तभी क्रुएल्टी होगा। हो सकता है कि ऐसा रीजनेबल एप्रीहेंशन भी हो सकता है कि जान का खतरा हो भी सकता है, तो भी उसको माना जाएगा कि वो क्रुएल्टी है। इफ द हस्बैंड थ्रेटन्स द वाइफ, तो वो क्या होगा? वो मेंटल क्रुएल्टी होगा। बट बॉडीली इंजरी दे रहा है तो क्या होगा? वो फिजिकल क्रुएल्टी। ठीक है? दास्तान वर्सेस दास्तान का केस, इस केस में क्या बोला गया? क्रुएल्टी कैन cruelty cause reasonable apprehension that it is harmful or injurious for one person to live with another. क्रुएल्टी का क्या है ना कि ये ऐसा है कि एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ रहना खतरा लग रहा है। ठीक है? दैट इज क्रुएल्टी। ओके? इसमें बोला गया दास्तान वर्सेस दास्तान के केस। हो सकता है कल के दिन कुछ भी हो जाए, हो सकता है हस्बैंड वाइफ को मार दे, वाइफ हस्बैंड को मार दे, तो वो भी रीजनेबल एप्रीहेंशन लग रहा है कि उसके लाइफ या हेल्थ को खतरा है, तो वो क्रुएल्टी में। ओके? शोभा रानी वर्सेस मधुकर रेड्डी के केस में क्या बोला? शोभा रानी वर्सेस मधुकर रेड्डी के केस में बोला गया कि इवन द डिमांड ऑफ डाउरी कॉन्स्टिट्यूट क्रुएल्टी। अगर कोई किसी से दहेज
का माँग कर रहा है तो वो भी क्रुएल्टी है। आप मेंटली किसी को प्रेशराइज़ कर रहे हैं, वो चीज़ करने के लिए जो वो फर्स्टली वो तो इल्लीगल है एंड सेकंडली maybe that person is capable or not capable of giving it, then that will constitute mental cruelty. सुमन कपूर वर्सेस सुधीर कपूर के केस में क्या बोला गया कि मेंस रिया इज नॉट द एसेंशियल एलिमेंट फॉर क्रुएलिटी। जरूरी नहीं है कि गिल्टी माइंड हो ही। व्हाट इज मेंस रिया इज गिल्टी माइंड। जरूरी नहीं है कि गिल्टी माइंड हो ही। हो सकता है पर्सन बोले कि अरे हम तो ऐसे ही बोल दिए थे, तो ऐसे ही नहीं बोल सकते हो ना आप। ये मेंस रिया इज नॉट द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्रुएलिटी। मेंस रिया कहाँ पे एसेंशियल, ये इंटेंशन कहाँ पे एसेंशियल होगा, इंटेंशन डिजर्शन में एसेंशियल होगा, लेकिन यहाँ पे मेंस रिया एप्लीकेबल नहीं है क्रुएलिटी में कि आप बोलो कि मेरा तो इंटेंशन ही नहीं था ऐसे बोलने का, हम तो वैसे बोल दिए, ऐसे नहीं होता है। ओके, वंस यू सेड योर वर्ड्स आर हर्ट बाय समवन और दैट मे काउज द ग्राउंड फॉर क्रुएलिटी। ओके, विजय कुमार रामचंद्र भाटे वर्सेस नील विजय कुमार भाटे के केस में क्या बोला गया। इस केस में बोला गया कि डाइवोर्स प्रोसीडिंग के ड्यूरिंग भी अगर कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है तो वो क्या है, वो भी क्रुएल्टी होगा। ओके, जब डाइवोर्स प्रोसीडिंग होता है तो बोथ हस्बैंड एंड वाइफ पुट एलिगेशन अपॉन ईच अदर। ओके, तो वो जो एलिगेशन है अपॉन कैरेक्टर, दैट कैरेक्टर असैसिनेशन का जो रिमार्क्स रहेगा वो भी क्रुएल्टी। ओके, डिजर्शन। डिजर्शन क्या है, इंटेंशन इज अ नेसेसरी कंडीशन। डिजर्शन के लिए क्या होना चाहिए, इंटेंशन नेसेसरी कंडीशन है। अब विदाउट इंटेंशन अगर कोई किसी हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे के सोसाइटी से विड्रॉ हो गया फॉर सम टाइम, मे बी फॉर स्टडी पर्पस और फॉर जॉब पर्पस और एनी ऑफ द रीजन, बट दैट इज फॉर विदाउट इंटेंशन टू desert her or him, so that will not constitute to desertion. Okay, desertion के लिए इंटेंशन होना नेसेसरी है, ठीक है। लेकिन और ये कितना होना चाहिए, इट शुड नॉट बी लेस देन 2 ईयर। लेस देन 2 ईयर कब से, जब हम पिटीशन फाइल कर रहे हैं इमिडिएटली बिफोर इट 2 साल हो जाना चाहिए। ओके, तभी माना जाएगा कि द अदर स्पाउस है, वन स्पाउस हैज डिजर्टेड टू द अदर स्पाउस। ठीक है, केस लॉ क्या है, बिपिन चंद्र वर्सेस प्रभावती। इसमें क्या बोला गया, इट इज नेसेसरी टू प्रूव द इंटेंशन। अगर कोई पार्टी दूसरे पार्टी को डिजर्ट कर रहा है तो ये नेसेसरी है कि वो इंटेंशन को प्रूव करे। ओके, कि वो पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी पीरियड के लिए उसका इंटेंशन था कि वो उसको छोड़ दे। ठीक है, और क्या क्या हो इसेंशियल है डिजर्शन के लिए। डिजर्शन के लिए इसेंशियल है कि वो कोहैबिट नहीं कर रहा है साथ में। कंडक्ट मस्ट बी विदाउट रीजनेबल काउज, बिना किसी रीजनेबल काउज के डिजर्ट कर दिए। ठीक है, या इट मस्ट बी विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी। ठीक है, फर्स्टली कि 2 साल से ज़्यादा के लिए छोड़ दिए, सेकेंडली बिना किसी रीजनेबल काउज के लिए छोड़ दिए, एंड थर्डली इट इज़ विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी। दूसरे पार्टी के कंसेंट के बिना ही उसको छोड़ दिए, तो द अदर पार्टी हैज़ द राइट टू फाइल अ पिटीशन इधर फॉर द डिवोर्स, और it is also ground for judicial separation on the ground of desertion. Okay, let's see other क्या है, कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या है, कन्वर्जन खुद में डाइवोर्स में ये नहीं हो जाएगा। कोई पर्सन कन्वर्ट कर लिया तो लो अब डाइवोर्स में ग्राउंड बन जाता, नहीं ऐसा नहीं होगा, वैसे नहीं बनता वो ग्राउंड। The ground of divorce on the basis of conversion will not available to the converting spouse। वो कभी भी converting spouse को अवेलेबल नहीं हो। ठीक है, हो सकता है द सेकेंड पर्सन को पता है कि हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से तो हमें मोनोगैमी फॉलो करना है, बट ही वांट्स टू रीमैरी टू समवन एल्स, फिर वो ही मे टेक अ ग्राउंड ऑफ कन्वर्जन। वो चाहे तो वो कन्वर्ट कर ले और फिर रीमैरी कर ले और बोले नाउ आई एम अ मुस्लिम,
सो आई कैन मैरी सो आई कैन हैव 4 वाइफ, ठीक है? तो नहीं, सरला मुद्गल के केस में बोला गया कि आप बस इसलिए कन्वर्ट नहीं कर सकते, हिंदू मैन कैन नॉट कन्वर्ट ओनली टू बाईपास सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, ओके? वो सिर्फ इस्लाम में कन्वर्ट नहीं कर सकते सेकंड मैरिज करने के लिए, वर्जन नहीं कर सकते, ओके? और क्या बोला गया कि और इसलिए भी क्यों? क्योंकि जो पार्टी खुद ही रॉन्ग है वो अपने रॉन्ग का बेनिफिट ना ले, ठीक है? तो कन्वर्जन हमेशा, कन्वर्जन का ग्राउंड उस पार्टी को अवेलेबल नहीं होगा जो पार्टी कन्वर्ट किया है, ओके? इट विल बी अवेलेबल टू द अदर पार्टी, ओके, अग्रीव पर्सन, ओके? अनसाउंड माइंड, अब अनसाउंड माइंड क्या है? तो अनसाउंड माइंड ऐसा होना चाहिए कि वो इनक्यूरेबल होना चाहिए फर्स्टली, ठीक है? इनक्यूरेबली ऑफ अनसाउंड माइंड, कि उसका पागलपन ठीक ही नहीं हो सकता है। सेकेंडली क्या है कि वो कंटिन्यूअस, या तो कंटिन्यूअस है या तो इंटरमिटेंटली है, मतलब या तो हमेशा उसको पागलपन का दौरा रहता है या तो कभी कभी उसको पागलपन का दौरा आता है, मेंटल डिसऑर्डर का दौरा आ रहा है, ठीक है? अगर वैसा है तो इट विल फॉल अंडर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। सेकेंडली क्या बोलता है कि मेंटल डिसऑर्डर क्या है? तो मेंटल डिसऑर्डर है इलनेस या इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड। देयर आर पीपल जिनका माइंड कभी डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है? इनकम्प्लीट डेवलपमेंट है माइंड का बाय बर्थ, ओके? तो वो भी किस में आएगा? वो मेंटल डिसऑर्डर में आएगा। और ये क्या इंक्लूड करता है? एक्सप्रेसली ये बोला गया है बेयर एक्ट में कि स्किज़ोफ्रेनिया को ये इंक्लूड करता है, मेंटल डिसऑर्डर इंक्लूड स्किज़ोफ्रेनिया, ओके? अब केस लॉ क्या है? तो राम नारायण गुप्ता वर्सेस श्रीमती रामेश्वरी गुप्ता, इस केस में बोला गया कि पागलपन जो है ना, पागलपन का ग्राउंड आप तब ले सकते हो जब वो पागलपन ऐसा है या इंसेनिटी और अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, जो भी बोलो, वो ऐसा है कि अदर पार्टी के लिए रहना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? तब आप इंसेनिटी का ग्राउंड ले सकते हैं। अदर पार्टी के लिए वो रीजनेबली एक्सपेक्टेड ही नहीं है कि वो उसके साथ रह पाए, ठीक है? 5 राउंड्स हो गया, ठीक है? तो बेसिक बेसिक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट था। और क्या क्या बचा है? लेप्रोसी, लेप्रोसी कब ओमिट किया गया? ओमिटेड कब? 2019 में। वेनरल डिजीज, रिनंसिएशन, रिनंसिएशन का मतलब क्या होता है? त्याग देना, ओके? अगर कोई त्याग दिया है, ठीक है, सांसारिक मोह माया को त्याग दिया है, मतलब वो रिनंस कर दिया। रिनंसिएशन ऑफ वर्ड इज ऑल्सो अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स प्लस जुडिशियल सेपरेशन, ओके? एंड एंटर इनटू अ रिलीजियस थिंग, ठीक है? कोई इंसान सांसारिक चीज को त्याग के किसी धार्मिक चीज में ने आपको ये कर लिया तो दैट इज रिनंसिएशन। द 7 पॉइंट इज मिसिंग फॉर 7 ईयर। अब क्या है? इट इज अ प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, ठीक है? अगर कोई पर्सन 7 साल से मिसिंग है तो माना जाएगा जिसके बारे में कि नेचुरली वो पर्सन सुना हो, जो कि नेचुरली उसको जानता है, ठीक है? बट दोज पर्सन हैज नेवर हर्ड इन ड्यूरेशन ऑफ 7 ईयर उसके बारे में, तो जो अदर स्पाउस है उसके पास ग्राउंड्स है कि वो अपने मैरिज को डिसॉल्व कर सकते हैं, ओके? इज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स प्लस फॉर जुडिशियल सेपरेशन, ओके? So basically we are done with all the 3 grounds for divorce under section 13. section 13 सबसेक्शन 1 में कितने ग्राउंड्स है? तो उसमें 7 + 2 जो कि डेजर्सन और क्रुएल्टी है, जो कि 1976 में ऐड हुआ था, वो ग्राउंड्स अवेलेबल है। टोटल 9 ग्राउंड्स अवेलेबल टू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। प्लस सेक्शन 13 सबसेक्शन 1A में बोथ हस्बैंड और वाइफ को अवेलेबल 2 ग्राउंड है। कौन कौन सा ग्राउंड? फर्स्ट कि अगर जुडिशियल सेपरेशन का डिक्री पास हो गया और देयर इज नो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल, नो रेस्टिट्यूशन ऑफ कोहेबिटेशन, तो और 1 या 1 साल से ज़्यादा हो गया उस चीज जुडिशियल सेपरेशन के डिक्री को पास हुए,
तो क्या होगा, वो भी ग्राउंड बन जाएगा डाइवोर्स का। सेकेंडली क्या है कि ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का डिक्री पास हुआ है, एक साल से ज़्यादा हो गया एंड देयर इज़ नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, तो भी वो ग्राउंड बन जाता है, ठीक है। अंडर 13 1 ए कैन ओके, एंड अंडर 13 क्लाउज अंडर 13 सब सेक्शन 2 के अंदर कितना है, 4 ग्राउंड्स अवेलेबल है विच इज अवेलेबल ओनली टू वाइफ। फर्स्ट, इफ द हस्बैंड इज द हस्बैंड कमिट्स बाइगेमी, if the husband is guilty of rape, sodomy and bestiality, if there is a decree of divorce against husband and it is and एक साल पास हो गया है and there is no cohabitation between husband and wife, तो भी वो ग्राउंड बन जाता है वाइफ के लिए डाइवोर्स का। द फोर्थ पॉइंट इज इफ ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, जब वाइफ 15 साल से नीचे है लेकिन वंस जब उसका शादी हुआ 15 साल से नीचे, बट वंस ही अटेंड द एज ऑफ 15 ईयर्स, तो बिटवीन द एज ऑफ 15 to 18 ईयर्स ही हैज द राइट टू repudiate her marriage. So we are clear with all the basic grounds of divorce under Hindu Marriage Act. Okay. Now एक बार बेयर एक्ट देख लेते हैं। बेयर एक्ट क्या कहता है? बेयर एक्ट कह रहा है कि डाइवोर्स कराउंड इधर बाय हस्बैंड एंड वाइफ, सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 में क्या बोल रहा है, इधर हस्बैंड या वाइफ को मिलेगा। कब कब फिर डिसॉल्व डिक्री ऑफ डाइवोर्स कब कब मिलेगा, जब वॉलेंटरली सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ एनी अदर पर्सन, मतलब एडल्ट्री में जब है, ठीक है, एडल्ट्री में है तब मिलेगा। क्रुएलिटी में क्रुएलिटी कर रहा है तो मिलेगा। डेजर्ट कर दिया है एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को लेकिन 2 साल से कम नहीं, मतलब कि जब भी पिटीशन लाए, पिटीशन लाने से इमीडिएटली पहले 2 साल हो गया होना चाहिए, उसके बाद ही आप पिटीशन ला सकते हैं डिजर्शन, ठीक है। और डिजर्शन में क्या होना चाहिए, डिजर्शन में इंटेंशन होना चाहिए अदर पार्टी का कि वो दूसरे स्पाउस को डिजर्ट कर दिया है, वो छोड़ दिया है, इंटेंशन होना चाहिए, प्लस साथ में कोहैबिट नहीं कर रहा है, प्लस क्या है कि दूसरे पार्टी के बिना कंसेंट के डिजर्ट, ओके। और 2 साल का नॉट लेस देन 2 ईयर, ओके। थर्ड क्या बोल रहा है, कन्वर्ट कर लिया है कन्वर्ट कर लिया है दूसरे रिलीजन में। फोर्थ सेकंड बोल रहा था सेकंड कन्वर्ट किया। थर्ड क्या बात कर रहा है, अनसाउंड माइंड का है, ओके। एक्सप्रेशन मेंटल डिसऑर्डर में क्या इंक्लूड है, एक्सप्रेसली ये बोला गया कि मेंटल ऑर्डर में स्किज़ोफ्रेनिया इंक्लूड होगा, ओके। और ये क्या है, कम्युनिकेबल फॉर्म ऑफ, देखो वेनरल डिजीज। फिफ्थ में, सिक्स में क्या बात कर रहा है, रिनेंस कर दिया वर्ल्ड को, कैसे एंटर इनटू रिलीजियस ऑर्डर, त्याग दिया है सांसारिक मोह माया को और किसी रिलीजियस ऑर्डर में एंटर, जैसे साधु महात्मा बन गए, ठीक है। उसके बाद क्या है, हैज नॉट बीन अलाइव फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर बाय दोज पर्सन हु वुड नेचुरली हैव हर्ड ऑफ इट हैड दैट पार्टी बीन अलाइव, उन लोगों के द्वारा जो कि उसके बारे में नेचुरली सुने गए होंगे अगर वो इंसान जीवित होगा, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स, ओके। और 2 ग्राउंड क्या अवेलेबल था, और 2 ग्राउंड अवेलेबल था अगर डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन पास हो गया और हस्बैंड और वाइफ साथ में नहीं रहते हैं, ठीक है, एक या 1 साल से ज़्यादा तक देयर इज नो कोहैबिटेशन। सेकंड बोल रहा था कि क्या बोल रहा है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का डिक्री पास हो गया और 1 या 1 साल से ज़्यादा हो गया, हस्बैंड एंड वाइफ रह रहे, देयर इज नो राइट रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन, तो भी ठीक है। और वाइफ में प्रेजेंट, अब वाइफ के पास जो 4 ग्राउंड था वो देखते हैं बैरक लैंग्वेज में क्या है कि हस्बैंड हैड मैरिड बिफोर मैरिड, जब अलाइव है वाइफ तो ही फिर से सोलमनाइजेशन ऑफ पिटिशनर मैरिड अगेन, हस्बैंड फिर से शादी कर लिए तो बाइगैमी का, ठीक है। सेकंड है हस्बैंड गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी, बेस्टियलिटी, ठीक है। थर्ड में क्या बोल रहा है, थर्ड में बोल रहा है कि क्या है, डिक्री ऑफ मेंटेनेंस अवॉर्ड किया गया हस्बैंड को, ठीक है, 1 साल से ज़्यादा हो गया, देयर इज नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन, ठीक है। फोर्थ क्या है, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी 15,
एज 15 से 18 के बीच ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी को वो ये कर सकते गर्ल। ओके 13A कब लाया गया ये 1976। 1976 में 13A को लाया गया एंड डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट भी 19 इंट्रोड्यूस किया गया। डिसोल्यूशन ऑफ मैन बाय डिक्री ऑफ सेकंड में क्या था इंसेन। अगर क्या है इंसेन है वजन है वर्ड कर लिया अल्टरनेटिव रिलीफ में क्या बात कर अल्टरनेटिव रिलीफ में बात कर कि अगर अल्टरनेटिव रिलीफ डाइवोर्स के ग्राउंड पर डाइवोर्स कब कब नहीं दिया अगर एक पर्सन कन्वर्ट कर जा रहा है या रिनंस कर जा रहा है या प्रिजम्पशन ऑफ डेथ है इस 3 ग्राउंड पे अल्टरनेटिव रिलीफ डाइवोर्स के प्रोसीडिंग में नहीं दिया जाएगा। किस में नहीं दिया जाएगा अगर क्या कर रहा है अगर एक पर्सन कन्वर्ट कर रहा है या रिनंस कर रहा है या प्रिजम्पशन ऑफ डेथ है तो उस ग्राउंड पे अल्टरनेटिव रिलीफ नहीं। डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट क्या है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट को ऐड किया गया है 1976 में। कब कब डाइवोर्स ग्राउंड्स क्या है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का तो ग्राउंड है कि जो हस्बैंड और वाइफ है वो एक या एक साल से ज़्यादा अलग अलग रह रहे हैं और फर्स्ट एक साल से अलग रह रहे हैं सेकेंड साथ रहना पॉसिबल ही नहीं है और थर्ड क्या है कि वो दोनों म्यूचुअली अग्री किए हैं फॉर डाइवोर्स। ओके ये 3 पॉइंट अगर है तो आप डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का केस फाइल कर सकते हैं और ये जो म्यूचुअल कंसेंट है ना ये म्यूचुअल कंसेंट बिना फोर्स फ्रॉड या कोअर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस का होना चाहिए। ठीक है द म्यूचुअल कंसेंट जो ये जो कंसेंट है इट शुड बी फ्री एंड म्यूचुअल। ओके लेट्स सी और क्या क्या है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट जो बोथ पाती है ना ये दोनों सेपरेटली रह रहा है एक या एक साल से ज्यादा। ठीक है एक या एक साल से ज्यादा पार्टी सेपरेटली रह रहा है तो वो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का राउंड ले सकता है। प्लस प्लस क्या है अब रहना संभव नहीं है साथ रहना दोनों को एक दूसरे के साथ रहना संभव नहीं है ड्यू टू एनी ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। द थर्ड पॉइंट इज म्यूचुअली अग्री किए हैं कि मैरिज को रिजॉल्व करें। जब ये 3 चीज फुलफिल होगा तब आप डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का पिटीशन डाल सकते और ये जो पिटीशन जब भी फाइल होगा ये पिटीशन हमेशा ज्वाइंट पिटीशन होना चाहिए विदाउट फोर्स फ्रॉड अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोअर्जन। ओके और आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन पार्टी नीड्स टू वेट फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 मंथ का पीरियड तक पार्टी को फर्स्टली वो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का के लिए अप्लाई किया सेकेंडली अप्लाई करने के 6 मंथ तक उसको वेट करना पड़ेगा। ठीक है और दैट मिनिमम पीरियड मस्ट बी नॉट लेस देन 6 मंथ। ठीक है लेकिन बट इट मस्ट नॉट एक्सीड 18 मंथ्स। ठीक है मैक्सिमम पीरियड कितना होगा 18 मंथ। ठीक है नॉट लेस देन 6 मंथ बट नॉट मोर देन 18 मंथ्स। और ये जो ड्यूरेशन है ये जो 6 मंथ से 18 मंथ्स के जो ड्यूरेशन को क्यों दिया गया है इट इज कॉल्ड एज द कूलिंग पीरियड। ओके कूलिंग पीरियड इसको कहते हैं क्यों क्योंकि कोर्ट का मानना है कि इस ड्यूरेशन में हो सकता है आप लोग के बीच में समझौता हो जाए और आप लोग चाहे कि ये मैरिज परसिस्ट करे इट शुड नॉट डिसॉल्व बिकॉज कोर्ट का यही है कि मैरिज अगर हुआ है तो इट शुड परसिस्ट जितना कम हो सके उतना कम। द पीरियड बिटवीन 6 to 8 months is called cooling period. Okay and after the period party will make a motion before the
कि जैसे ही पीरियड खत्म होगा तो पार्टी क्या करेगा, एक जॉइंट मोशन कोर्ट के पास जैसे ही ये प्रेस्क्राइब पीरियड खत्म हुआ, ठीक है। अमनदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर के केस में क्या कहा, इस केस में कहा गया कि ये जो पीरियड है ना 6 मंथ, ये कि मिनिमम इतना पीरियड होना चाहिए, ये एक मैंडेटरी पीरियड नहीं है। ये क्या है, ये एक डायरेक्टरी पीरियड, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे कि कोर्ट अगर चाहे तो वो उससे कम पीरियड में भी मैरिज को डिसॉल्व कर सकते इफ इट इज सेटिस्फाइड। ओके, भाई संभव नहीं है इन लोग का साथ रहने का, और अगर साथ रहा विल बी इररिपरेबल लॉस टू ईच अदर। ओके, सुरेश्ता देवी वर्सेस ओम प्रकाश 1992 के केस में क्या कहा, इस केस में कहा गया कि जो म्यूचुअल कंसेंट का डाइवोर्स है ना, अगर कोई भी एक पार्टी चाहे तो यूनिलैटरली क्या कर सकता है कि पिटीशन को विड्रॉ कर सकता। सपोज दो पार्टी म्यूचुअली अग्री किया कि नाउ इट इज नॉट संभव कि चलो नहीं रह पाएंगे, साथ नहीं रह सकते, तो दोनों एक जॉइंट पिटीशन लाया और म्यूचुअल कंसेंट के ग्राउंड पे डाइवोर्स फाइल कर दिया। लेकिन आफ्टर सम टाइम्स मे बी विद इन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कूलिंग पीरियड एनी ऑफ द वन पार्टी रियलाइज कि ना इट इज नॉट पॉसिबल टू लिव विदाउट हिम और विदाउट हर, तो वो क्या करेगा, वो कभी भी यूनिलैटरली मतलब एक तरफा वो अपने पिटीशन को विड्रॉ कर सकता। तो वंस पर वो विड्रॉ कर लिया तो कोर्ट के पास अब जुरिडिक्शन नहीं बचेगा कि म्यूचुअल ग्राउंड के ऊपर वो डाइवोर्स दे पाए, ठीक। कोर्ट के पास म्यूचुअल ग्राउंड के ऊपर डाइवोर्स देने का कोई जुरिडिक्शन नहीं रहेगा इफ वन पार्टी हैज यूनिलैटरली विड्रॉ द पिटीशन ऑफ डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। लेट्स सी क्या बोलता सब्जेक्ट। आई होप क्या है, कब से लिविंग सेपरेटरी कब से रह रहा है, 1 साल या 1 साल से ज़्यादा, हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर, एक साथ रहना संभव नहीं, और म्यूचुअली क्या किया, अग्री किया कि मैरिज शुड बी डिसॉल्व। तो 3 कंडीशन होना चाहिए, एक तो 1 या 1 साल से ज़्यादा अलग रह रहा है, सेकंड कि अब साथ रहना संभव नहीं है, और थर्ड कि म्यूचुअली अग्री किया है कि अब ये मैरिज को डिसॉल्व हो जाना चाहिए। ओके, तो इस 3 राउंड पे आप डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट ले सकते हैं। और पार्टी क्या करेगा, पार्टी एक मोशन और बोट मतलब जॉइंट मोशन लाएगा, कब, नॉट अर्लियर देन 6 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन, जब हम पिटीशन को फाइल किए उसके 6 मंथ से पहले नहीं, उस आप 6 मंथ के बाद आप एक जॉइंट मोशन ला सकते हैं, बट नॉट लेटर देन 18 मंथ्स, 18 मंथ्स के बाद नहीं, ठीक है, 18 मंथ्स के बाद नहीं पिटीशन ला सकते हैं कि विड्रॉ को सेटिस्फाई अगर हो जाएगा तो वो क्या करेगा, और डाइवोर्स को ये कर देगा, डिक्लेयर मैरिज टू बी डिसॉल्व एंड इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री, ठीक है। सेक्शन 14 क्या बात करता है, सेक्शन 14 बात करता है नाउ कौन कौन सा प्रोविजन डाइवोर्स से डील करता था, सेक्शन 13, 13(1), 13 सेक्शन 13, सेक्शन 13A, सेक्शन 13B, सेक्शन 14 एंड 15। ओके, तो 14 क्या बात कर रहा है, 14 बोल रहा है कि नो पिटीशन फॉर डाइवोर्स बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज, शादी के 1 साल के अंदर अंदर कोई भी पिटीशन, डाइवोर्स पिटीशन नहीं फाइल किया जाना चाहिए आफ्टर 1 ईयर ओनली, ठीक है। लेकिन ये फाइल कर सकते हैं, कब फाइल कर सकते हैं, जबकि एक्सेप्शन भी है इसका, ठीक है। जनरल रूल है कि शादी के 1 साल के अंदर डाइवोर्स पिटीशन फाइल नहीं होगा, लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि अगर अगर ये एक्सेप्शनली हार्डशिप टू द पिटीशन, एक्सेप्शनल हार्डशिप है पिटीशन को रहना, तो आप फाइल कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्शनल हार्डशिप में कर सकते हैं, ठीक है, या एक्सेप्शनल डेप्रेविटी ऑन द पार्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट है तो भी कर सकते हैं, 2 ग्राउंड पे कर सकते हैं कि पिटिशनर के लिए एक्सेप्शनली हार्ड है कि उस इंसान के साथ रह पाए, या और दूसरा कि रेस्पोंडेंट के पार्ट पे ये एक्सेप्शनल डेप्रेविटी है तो भी आप फाइल कर। ओके, सेक्शन 15 क्या बात करता है, सेक्शन 15 बात करता है डाइवोर्स पर्सन व्हेन रीमैरिज। अब डाइवोर्स तो हो गया, सेक्शन 13 में डाइवोर्स तो ले लिए, अब फिर से शादी करना है, कब करे फिर से शादी,
तो सेक्शन 15 बोलता है कि जब आपका राइट टू अपील खत्म हो जाए ना, आप तब कर सकते। जब दोनों ही पार्टी के पास राइट टू अपील नहीं रहता है उस डिक्री के अगेंस्ट, डाइवोर्स डिक्री के अगेंस्ट राइट टू अपील नहीं रहेगा, तब क्या करेगा वो, दूसरा शादी कर सकता है। अब राइट टू अपील कितना है, राइट टू अपील किसमें दिया हुआ है, तो सेक्शन 28 में दिया गया है कि राइट टू अपील कितना, मतलब अपील पीरियड कितना है, अपील पीरियड कितना है वो कहाँ बताया गया है, तो वो बताया गया है सेक्शन 28 में बताया गया। तो अपील पीरियड कितना होगा हिंदू मैरिज एक्ट में, तो 90 डेज, ठीक है। प्रीवियसली कितना था, प्रीवियसली 30 डेज था राइट टू अपील, लेकिन अब कितना है, अब इट इज 90 डेज लिमिटेशन पीरियड फॉर राइट टू अपील व्हेन डाइवोर्स, मतलब 90 डेज मतलब लमसम 3 मंथ, लेकिन सम मंथ दे आर 28 डेज, नहीं तो इन टोटल जब 90 डे खत्म हो जाएगा डाइवोर्स डिक्री के, तो और अपील फाइल नहीं किया गया है अदर पार्टी के द्वारा, तो दोनों ही पार्टी के पास राइट हो जाएगा, वो जाके मैरी कर सकता है। तो divorce under Hindu Marriage Act is clear. Okay. Now we will start section 16, legitimacy of child of void and voidable marriage in our next. Okay. Thank you.